So hello and welcome everyone. Let's start our next chapter of history, class 6, that is chapter number 5, Kingdoms, Kings and an Early Republic. Okay, so basically the question comes in our mind कि लोग राजा कैसे बने, है ना? At that time they were hunting and gathering the food, and they have developed themselves towards the agriculture, towards the domestication. So basically the mentality that in our mind is that all the peoples were equal at that time, but then also then how some men became rulers. Okay, so let's discuss this. देखो क्या होता था, some rajas, they were elected by the jans. अब jans कौन होते थे? तो peoples. Okay, jan is a Hindi or the Sanskrit word which means the people. Okay, so we have already discussed about some of the important kings. Okay, in our previous chapter, that is what books and burials tells us. Okay, so the rajas are chosen by the people only. So around 3000 years ago we find some changes taking place in the way in which rajas were chosen. So many of the we can say electing processes were changed. Okay, earlier they were called the wealthiest man as their rajas, or the person who can take care of its kingdom or who can take care of the people, so they will declare themselves as rajas. Okay, but later on एज द टाइम चेंजेस, तो राजा जैसे बनते थे उसमें भी चेंजेस आएगा, है ना? ऑब्वियसली द टाइम चेंजेस एवरीथिंग. सो बेसिकली जो राजा होते थे दे परफॉर्म्ड द यजनास. ओके, यजनास इट इज़ गिवन ऑन इन द हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा. अब हाइम्स किसने डिस्कवर की थी या कंपोज की थी? दे वर कॉल्ड सेजेस, जिसको हम हिंदी में ऋषिज बोलते हैं. सो द सेजेस और दिस सेजेस लेटर डिक्लेयर देमसेल्फ एज आर्यास, कि they are the son of the Aryas. So now the Ashwamedha Yagya. Ashwamedha यज्ञ में क्या होता है? A horse has been we can say loose to roam here and there, okay, for 24 hours. So the places where the foot of the horse reaches, that place come under the majesty of that particular raja जिसका वो घोड़ा होगा. Okay, so Ashwamedha Yagya is this in which a horse sacrifice was such a ritual. ये एक बहुत पहले चलती थी. ठीक है, we in our serial means जो अभी एक रामायण सीरियल आया था, इस पे भी क्या है, when Lord Rama came back from the Lanka. Okay, so they have also performed this yagya which is called Ashwamedha Yagya, and his horse, okay, the Lord Rama's horse is captured by their own son. Okay, so means I'm just trying to say that कि it is the common thing that was performed in ancient times. Okay, so not common for every people but for us कि वहाँ होते ही रहते थे, है ना? several rajas were there who have performed this Ashwamedha Yagya. So उसमें होता क्या था? जो घोड़ा है, the horse has been loosened for the 24 hours, and the place where the foot of the horse reached, that place comes under the majesty of that particular raja. Okay, so the raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful, and all those who became bought gift for him. So raja जो होते थे, those who performs that Ashwamedha Yagya is considered or is recognized as being very powerful. Okay, so the raja was a central figure in these rituals. So ही ऑफन हैड अ स्पेशल शीट, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन. देखो टाइगर स्किन क्यों होती थी? बेसिकली जो टाइगर है ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल. ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल. सो नाउ टू गेट इट्स स्किन द किंग मस्ट हैव टू किल द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल ऑफ द प्लेनेट. ओके, उसको मारना पड़ेगा, देन ओनली ही विल गेट हिज स्किन. सो इफ a strongest animal is defeated by a king or by a person, that person is considered as the strongest person. Okay, so this animal skin shows, or the tiger skin shows, the bravery of the king. Okay, now his charioteer, who was his companion in the battlefield,
and witness his exploits, chanted tales of glory. देखो chanted tales of glories, it is the common thing. ठीक है, क्या होता था, राजा in his kingdom there are many poets or the writers, okay, who always chanted the tales of the raja's glory. ओके अब देखो कोई क्या करता था, उनकी बायोग्राफी लिखता था, है ना. सम राजाज वर देयर हु लाइक टू राइट अबाउट देम सेल्फ, तो जो खुद के बारे में लिखते हैं दैट इज कॉल्ड द ऑटोबायोग्राफी. ओके सो हिज रिलेटिव्स स्पेशली हिज वाइफ्स एंड सन्स had to perform a variety of minor rituals. The other rajas were simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice. तो जो देखो छोटे राजा हुआ करते थे, they just sit to listen the rituals that were performed by the greatest king. Okay, so now priests were perform the rituals. Yes, underline this line that who perform the rituals, तो priest, सिर्फ प्रीस्ट ही करते थे, बिकॉज दे आर ऑफ हायर ऑर्डर इन वर्ण सिस्टम. ओके, अब वर्ण सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, नॉट बाय बर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क. सो द वर्ण सिस्टम हैव 4 वर्ड्स, दैट इज ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, शूद्रास एंड वैश्यास. ओके, सो ब्राह्मण्स दोज हू वर द प्रीस्ट, है ना, पुजारी हुआ करते थे, या दोज हू वर द टीचर्स, वी कैन से द टीचर्स वर द ब्राह्मण्स एट दैट टाइम. क्षत्रिय हु टेक केयर ऑफ हिज लैंड, ओके, जो लड़ाई धड़ाई करते थे वो क्षत्रिय. नाउ वी नीड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द थिंग्स एंड वी नीड टू टेक केयर ऑफ अवर बिजनेस ऑल्सो, तभी तो हम कुछ खा पाएंगे, है ना. तो दैट इज ऑल डन बाय द वैश्यास एंड ऑल दीज 3 persons वर हेल्प्ड बाय द शूद्रास. ओके, मीन्स जो शूद्रास होते थे, समझो ये घर के काम वाम करते थे ये सब. ओके, एंड दिस इज व्हाट इज डिस्क्राइब्ड इन दिस येलो बॉक्स. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. सो द जनपद्स, अब देखो जनपद्स, द वर्ड जनपद इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 words, जन एंड पद. पद मीन्स द फुट, है ना, पद जहाँ पड़ गए. तो जो जन है, Jan is basically for the people. So the Janpad literally means the land where the Jan set his foot and settle down. Okay, so that is called the Janpad, जहाँ वो रहने लगे. ठीक है. Now the Raja is the strongest people, तो he continue to rule over a person. ठीक है. तो suppose वो person एक छोटी जगह पर रहते हैं, suppose a village. Okay, then the strongest Raja captured some of the nearby villages. तो ये उसका एरिया हो गया, है ना. इन दिस वे ही डेवलप्ड हिज एरिया. तो धीरे धीरे वो बड़ा होता जाएगा. एंड वेन एवर दिस एरिया गेट्स बिगर, दैट इज कॉल्ड द जनपद्स. एंड टुगेदर 4-5 जनपद्स मिलकर बनाती है क्या, महाजनपद्स. ओके, सो जनपद्स क्या है. आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दीज जनपद्स. अब जनपद्स कहाँ से, जैसे देखो पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अतरंजी खेरा नियर इता. The last 2 are in Uttar Pradesh, तो मीरठ और अटराजिन खेरा. Now they found that people lived in huts and kept cattle as well as other animals. They also grew a variety of crops. अब जो crops जनपद में उस टाइम पे उगाई जाती थी, they were rice, wheat, barley, pulses, sugar cane, sesame and mustard. Okay, now we talk about the Mahajanpads. तो देखो about 2500 years ago, development was there, that is called Indus Valley civilization. Indus Valley civilization, है ना. So about Indus Valley civilization we have already discussed a much, so मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना समझ लो कि in Indus Valley civilization also it consisting of Lothal, है ना, Citadel, Mohenjo-daro, हरप्पा, ऑल दीज साइट्स टुगेदर इज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो ये समझ लो कि जो लोथल, सिटाडेल, मोहनजोदारो, ऑल दीज वर द जनपद्स एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द महाजनपद. ओके, सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट. सो मोस्ट महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द कैपिटल सिटी, महाजनपद्स हैव कैपिटल सिटी. जैसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद है दैट इज कॉल्ड द मगध जनपद और द अवंती जनपद. सो द कैपिटल ऑफ अवंती इज उज्जैन. इट इज़ इन अवर मध्य प्रदेश ओनली. सो मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड का मतलब बच्चों वहाँ किला बने होते थे, है ना, जहाँ पर राजा रहते थे. सो दिस मीन्स दैट
ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम। तो इस फोर्ट्स के पास क्या होते थे, एक बाउंड्री टाइप की बनी रहती। यू कैन गो देयर द प्लेस नियर द नौगांव Dobela Resort. There you can see the fort with the proper wall surrounding it. Okay. Now these are the important Mahajanpads. So this is the Magad Janpad, which is the vastest, or the we can say the greatest Mahajanpad of the world. Once time, एक टाइम पे थी, है ना, ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ हमें इंडिया की नॉलेज थी, नॉट अबाउट द वर्ल्ड. सो we can say in India it is the largest or the biggest महाजनपद मगध. ओके. अब मगध देखो होता क्या था, क्यों ये महाजनपद डेवलप होती थी. देखो बेसिकली दोज पीपल्स पर इंटरडिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर. तो जो द एरिया नियर द रिवर्स आर वेरी फर्टाइल, है ना, एंड आर वेरी सुइटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. बहुत अच्छे हुआ करते थे क्रॉप्स उगाने के लिए, एंड सम अदर थिंग्स. ओके. सो बेसिकली इफ़ वी टेक आवर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है, आज हमारे पास खाने को है, दैट इज़ सफिशिएंट. लेकिन हमारे पास जब ज़्यादा आ जाएगा, वी कैन एक्सपोर्ट इट टू समवन, है ना, देन वी विल बी इकोनॉमिकली वेल. ओके. वी विल बिकम वेल्दियर एंड वेल्दियर. सो this improves our economic condition. तो सेम वॉज हैपनिंग विद द एरिया. जैसे एक जनपद है, ओके. now they used to grow crops for their survival. Now they have the stock of the crops, okay, so they will sell to some other janpads and they will get the money. So now this money is useful for the development of the janpad. अब वो डेवलप होगी, राजा स्ट्रांग होगा, देन ही यूज टू कैप्चर द सराउंडिंग एरियाज, है ना, वो और पास के एरियाज को क्या करेगा, कैप्चर करेगा. जैसे अवंती का क्या हुआ था, अवंती इज सिचुएटेड नियर द रिवर नर्मदा एंड द रावी. ओके. सॉरी, रावी नहीं, नर्मदा एंड द शिप्रा. ओके. सो नाउ अब ये एरिया इसके कवर में आ गया. नाउ दे आर इकोनॉमिकली वेल, द राजा इज स्ट्रॉन्गेस्ट इनफ टू कैप्चर अनदर एरिया. सो ही विल कवर अप दिस ताप्ती एरिया नियर बाय द ताप्ती, बिकॉज it is fertile or it is irrigated by the river Tapti. Okay. then he will look up over the Godavari river कि मैं यहाँ तक expand कर लूँ अपने एरिया को. Okay. then we can grow more crops, we can become easily wealthier and wealthier, है ना, हमारी कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी. तो ऑल दीज जो मेजर कॉज है ना इसका, वो क्या है, द कैप्चरिंग ऑफ द फर्टाइल एरिया. ओके. सो जो मगध की बात है, मगध वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम. वाई? बिकॉज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल वॉज प्रेजेंट ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा, है ना, गंगा के, और गंगा इज फ्लोइंग इन दिस मगध रीजन. ओके. दैट इज वाई दिस एरिया इज वेरी वेरी फर्टाइल. ओके. तो बाद में अभी हम और भी पढ़ेंगे यहाँ पर क्या होता है, त्रिपार्टी स्ट्रगल, यहाँ राष्ट्रकूटास हो जाते हैं, है ना, यहाँ पर अदर किंगडम्स आते हैं, ये तीनों फिर इसके पीछे लड़ते हैं. तो दिस ऑल हैपेंस एंड दिस वी विल डिस्कस लेटर. सो यहाँ पर कैसे महाजनपद फॉर्म हुई, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू यू. लेट्स मूव फर्दर. नाउ द टैक्सेस. अब देखो क्या होता था, राजा यूज टू कैप्चर द सराउंडिंग एरिया, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो अब देखो, सपोज वी हैव डिस्कस्ड इज फॉर अवंती. राजा ने क्या किया, सपोज ही हैज़ कैप्चर्ड अप टू द गोदावरी रिवर. ओके. सो नाउ द राजा यूज टू कलेक्ट द टैक्सेस. तो टैक्सेस अप टू 70% ये राजा को जाता था, और सिर्फ 30% वॉज गिवन टू द फार्मर जो उसको उगाता था, है ना. मैनी लोन प्रैक्टिस वॉज ऑल्सो स्टार्टिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड. वो राजा क्या करते थे, फार्मर्स को लोन दे देते थे कि यू कैन grow the crops easily, and after the rearing of the crops or when the grains are prepared, you can give back my loan with the interest. Okay. तो taxes are the main important factor. और चाणक्य जो कौटिल्य थे, उन्होंने एक बात भी बोली थी, कौटिल्य, आई होप you all know who is कौटिल्य. So he used to say that कि राजा की जो इनकम होती है वो टैक्स पर ही डिपेंड करती है, ये उन्होंने बोला था.
ठीक है, तो वाई दे हैव their income is dependent on the taxes? Because there is a there are the peasants who used to grow the crops. Okay, so if Raja does not collect the taxes from the agriculture field or the fertile areas, तो उसके पास कैसे पैसा आएगा, है ना? तो many of the taxes were there, and they have developed the another department to collect the taxes. Okay, that department is called revenue departments. Okay, so their head, they have one head. So king just have to order the head to collect all the taxes from all the fertile areas, और उसका काम हो जाता था. ठीक है, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एग्रीकल्चर पर टैक्स रखता था. इवन इफ़ यू आर हिंदू और द मुस्लिम, इफ़ यू वांट टू रोम हियर एंड देयर, ठीक है, जैसे सऊदी अरेबिया में मक्का एंड मदीना है, तो मुस्लिम पीपल्स यूज टू ट्रैवल देयर. ओके, बिकॉज इट इज़ सेड इन द कुरान दैट वंस इन अ लाइफ टाइम द मुस्लिम मस्ट हैव टू विजिट द मक्का और मदीना. ये देखना ही चाहिए ज़िंदगी में एक बार. ठीक है, तो उस पर भी टैक्स लगता था, जजिया एंड सजदा पाबोस जजिया, और बहुत से ऐसे टैक्सेस हुआ करते थे. ओके, सो दीज आर द 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैक्सेस जो लिखे हैं, नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट द टैक्सेस ओनली. ओके, नाउ चेंजेस इन एग्रीकल्चर. तो यू हैव रिमेंबर दैट फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें एक क्या मिला था, जो है एक प्लग मिला था, है ना? उस प्लग से क्या करते थे, द प्लग शेयर्स meant heavy clayey soil could be turned over better than the wooden plugs है. तो अब जो हो रहा था वो क्या हो रहा था कि फील्ड को क्या है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल आराम से हो जाती थी. पहले डायरेक्ट वी हैव स्कैटर्ड द सीड्स एंड द प्लांट इज ग्रो फ्रॉम द स्प्राउट. ठीक है, वो जो उगाते थे छोटे छोटे, उससे फिर प्लांट्स उगाते थे. तो नाउ दे हैव स्टार्टेड डिफरेंट प्रैक्टिसेस फॉर द एग्रीकल्चर. और ये सब जो चीज़ें होती थी, ये कौन, जो स्लेव्स होते, अब स्लेव मैन एंड वुमेन कौन थे? देखो, किंग्स यूज टू फॉट फॉर देयर किंगडम. ओके, एंड दे हैव टू कैप्चर द नियर बाय एरिया. तो सपोज 2 किंग्स, एक ये, दे वर फाइटिंग ईच अदर. ओके, सपोज किंग सेकेंड गॉट डिफीटेड, तो द पीपल ही लेफ्ट बिहाइंड, जो भी पीपल, इवन मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, दे वर कंसिडर एज स्लेव्स. और यही जो स्लेव्स होते थे ये सब एग्रीकल्चर करते थे, है ना? और द दासाज या दासीज, ये भी वही है जो सर्वेंट्स होते थे. तो दे यूज टू वर्क फॉर द किंग इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर. ओके, नाउ टेक अ क्लोजर लुक एट द मगध एम्पायर. तो मगधन एम्पायर बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद in 200 years. Many rivers such as Ganga, Son flowed through Magad. This was important for transport. अब transport भी water के through होता था. Many remains of the ships have been found in these sites. Okay, water supplies making the land fertile. So parts of Magad were forested. Elephants which live in the forest could be captured and trained for army. Or this is the main important factor for the war. ठीक है, हमारे पास क्या होते थे, हाथी. लेकिन बाद में ये क्या, देखो अभी तो हाथी क्या है, ये बहुत बड़ा होता है, वी कैन ईजिली वॉन द बैटल विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट. लेकिन लेटर ऑन धीरे धीरे क्या होगा, जो जब महमूद गजनवी या महमूद ऑफ गजनी ये हम पे अटैक करेंगे, तो दे हैव द बेटर और द फास्टेस्ट हॉर्स. ठीक है, तो अब हॉर्स से वो क्या है, दे कैन रैपिडली मूव हेयर एंड देयर, तो दे कैन इवन डिफीट दैट द बिगेस्ट एनिमल ऑन द प्लेनेट दैट इज कॉल्ड द एलिफेंट. ठीक है, तो ये अभी क्या है, अभी बहुत अच्छा है, फिर बहुत बुरा भी हो जाएगा. तो फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर, मतलब जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी मगध की वो बहुत अच्छी थी. क्यों? बिकॉज ऑफ द एवरेज एनुअल रेनफॉल, ऑल्सो द प्रेजेंट ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रिवर दैट इज कॉल्ड द गंगा एंड द सोन. ठीक है, तो ऑल्सो द वुड means the forest were also there, so they can easily get the woods. Okay, now besides there were iron ore mines in the region. Underline this line, ये important बनाता था मगध region को. Okay, because अब iron क्या है, the strongest metal found on the earth.
तो उससे बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वेपन्स भी बनेंगे. अब जब वेपन्स हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, वी कैन ईजिली वॉन द फाइट. तो मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स, बिम्बिसार एंड अजात शत्रु. ओके, so you have to find from which dynasty they belong. Okay, which dynasty they belong, the Bimbisar and the Jat Shatru. This you can find by yourself, which dynasty. Okay, now Mahapadma Nanda, he was the founder of the Nanda dynasty. ठीक है, जो महापद्मा नंदा थे, he was the founder of Nanda dynasty. Now he extended his control up to northwest part of the subcontinent. और उनकी जो राजगृह, जो आज राजगीर है, this was the capital of the Magadhan empire. ठीक है. Now later the capital was shifted to पाटलिपुत्र, present day जो आज पटना बोलते हैं हम जिसको, बिहार में है जो, that is called the पाटलिपुत्र. तो उनकी जो capital थी, he shifted his capital to पाटलिपुत्र. Okay, now more than 2300 years ago, a ruler named Alexander, who lived in Macedonia in Europe, wanted to become a world conqueror. उसको पूरी दुनिया जीतनी थी, ये समझ लो. तो अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. ही हैव फॉट द रिवर, फॉट बैटल विथ पुरुषोत्तम ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी. सॉरी, आई थिंक रावी और झेलम, जैसे ही कंफर्म होगा आई विल टेल यू, मे बी ऑन रावी और झेलम. तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, पोरस. ठीक है. ये हार तो गए थे अलेक्जेंडर से, बट इतनी ब्रेवली इन्होंने फाइट की थी कि इवन अलेक्जेंडर रिटर्न्ड ऑल हिज आर्मी एंड ऑल हिज किंगडम बैक टू द पोरस एंड दे बिकेम फ्रेंड्स. इतना ब्रेवली फॉट किया था पोरस ने. ठीक है. ही इज़ द इंडियन लीडर whose real name is Purushottam. So the fought between Porus and Alexander on the banks of the river Jhelum, or the maybe on the river Ravi, I'm not sure about that. So when he wanted to march further eastward, his soldiers refused. They were scared, as they have heard that the ruler of India had vast armies of foot soldiers, chariots and elephants. तो क्या हुआ था after this war? ठीक है. After this war, the Alexander's soldiers were very tired. Soldiers were tired. Okay, and there was a Mauryan empire. ठीक है, जिसके रूलर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य. आई थिंक यू हैव हर्ड दिस नेम, चंद्रगुप्त मौर्य. इन्हीं के टाइम पे इनके मंत्री कौन थे, कौटिल्य. ठीक है. तो इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था, जो इनके सोल्जर्स थे, दे रिफ्यूज टू क्रॉस द रिवर विच वॉज बिटवीन द मौर्यास एंड द अलेक्जेंडर आर्मी एंड दे गो बैक. ठीक है. सो नाउ टेक अ क्लोजर लुक एट वज्जी. While Magad became the powerful kingdom, Vajji with its capital at वैशाली नगर, बिहार, इसकी जो कैपिटल थी वो कहाँ थी, वैशाली में, which is in बिहार, modern बिहार. Okay. Now in a Ghana or the Sangh, there were not one but many rulers. Sometimes even when thousands of men ruled together, each was known as the Raja. These Raja performed ritual together. So they also meet in assemblies. For example, if they were attacked by an enemy. अच्छा, ये क्या होता था वज्जी में, 4 or 5 और several राजास एक साथ आ जाते थे. ठीक है. एंड जैसे अभी क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, या फिर हम बोल दें सार्क, जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है ना, सार्क, SAARC. ठीक है. तो इसमें क्या है, सपोज ही हैज़ 7 कंट्रीज़. ठीक है. तो ये आपस में ऐसे फ्रेंड बन जाते हैं कि आउट ऑफ दिस 7 कंट्री अगर किसी पर भी कोई भी वॉर होता है तो ऑल दीज 7 कंट्रीज विल स्टैंड टुगेदर. ठीक है. तो ऐसी असेंबलीज होती थी कौन सी पावरफुल किंगडम में, जो है वज्जी. ठीक है. तो बोथ बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग टू गणास एंड द संघास. Some of the most vivid description of the life in the Sanghas can be found in Buddhist book. So this we will discuss in our further chapters. So Ajat Shatru and the Vajjis,
Ajatashatru wanted to attack the Vajjis. He sent his minister named Vasaka to the Buddha to get his advice on the matter. The Buddha asked whether the Vajjis met frequently in full assemblies. ये सब you can read by yourself. There is nothing much given here. So the chapter is finished. I hope it is very much clear to you. So thank you.